Right. Well, hello everyone. Jai Bhim and Namo Buddhaya. Let me welcome you all. Firstly, on behalf of Ambedkar International Mission London. And thank you for joining this event. I am Satpal Mamman. And let me firstly acknowledge the devastation which has been caused by COVID-19. Each one of us has been affected in one way or the other. Either you have been personally affected or know someone who has been. And we are sensitive to the difficult time that everyone is experiencing at this point in time. I am also aware that a number of our distinguished speakers, guests caught the virus. But despite that, they are here with us today. Earlier on, Ms. Ria Singh, who was listed as one of the speakers, her mother contracted the virus. So she will not be able to join us. And we wish her mother speedy recovery. Now, thank you again, for your dedication and courage in giving up your precious time and despite personal difficulties. Now, there are a few housekeeping tasks. I just want to say firstly that for the record, this meeting acknowledges the tremendous hardship currently being faced by the Indian people. It is heart-wrenching to see so much human suffering on television in what can only be described as a catastrophe and a major failure of governance. Of course, there is now world focus on India with international aid being provided. Now, Britain itself has announced an aid package to India. I would share with you that today, in a British newspaper, The Times, there was a headline. The headline said, Modi leads India out of lockdown into a viral apocalypse. You can see how the international community is seeing India and the suffering of the Indian people. So before we invite each of our guest speakers, I want to acknowledge a number of important people without whom today's event would not have been possible. Firstly, I want to especially thank Shri Shekhar Bodhakar and also Shri Ravinder Lagade. And also want to extend special thanks to Piyush Chauhan, who agreed to be the co-host for today's event. His task will be to monitor chat activity and ensure the smooth running of this event from technology perspective. I also want to acknowledge and say thank you to Nitin Tulkar for his support. And mustn't forget our colleagues at the Ambedkar International Mission London, namely Mr. Subhash Chassal, Mr. Prem Man, Mr. Surinder Memi, Chitansu Kane, Ramji Bangar, Amarnath Bangar, the same Leal, and Mr. Shami Leal. They continue to be the bedrock of the mission. I'm aware that a number of you may not be familiar with the Ambedkar International Mission in London. So I will just take a few minutes to say a few words, not too much. I know you're eager to hear from the speakers. The AIM London was established in 1974
due to the inspiration of a group of dedicated Ambedkarites arriving in Britain in the early 60s, mostly from the Indian state of Maharashtra. The first Dr. Ambedkar's Jayanti was celebrated in 1962 in London by this small group of Maharashtrians. During the course of this next decade, they formed the Indian Buddhist Society to observe and celebrate Buddhist religious festivals. It was a small group initially, but were later joined by a group of staunch Punjabi followers of Dr. Babasaheb Ambedkar. Now, over the years, AIM London has continued to play a role to spread the message of Dr. Babasaheb Ambedkar by organizing annual events and to promote Buddhist teaching by establishing a Buddha Vihara and to accommodate Buddhist monks doing Dhamma Dhuta work supported by the Buddhist laity here in East London. Now, at the time AIM London was established, now we have a Buddhist cultural center, and we are currently building a Vipassana meditation hall to spread the Buddhist culture. Now, during the course of this event, as I said earlier, everyone will be put on mute. Only the invited speaker will be unmuted. So I request to all stay muted so that we can focus on the address given by our distinguished speakers. This is the first time that we have such an eminent list of speakers. Now they are all experts in their fields. They are more than experts. They are scholars and activists. Each one is capable of delivering powerful lectures individually. Unfortunately, due to time constraints, we can only hear a short message from each speaker for 10 minutes. The other thing I want to bring to your attention is this, that please be aware that this event is being recorded and it will be shared on social media. So please bear with us as we go through the list of speakers. And of course, you can put any messages in the chat. And unfortunately, you will not be able to interact directly with the speakers. But if there is a question that you want to address briefly, then we can invite the relevant speaker to address that question. But it will mostly be us listening to what our distinguished guests have to say and then wrap it up towards the end. And I hope that there are no objections in terms of us being able to record the event and then to share it on social media later on. So, looking at the list, I think we have got most of our distinguished speakers online. And so it gives me a distinguished honor and privilege to invite Dr. K.P. Singh with us as well. Welcome, Dr. K.P. Singh ji. Jai Bhim and Namo Buddhaya. Jai Bhim, Namo Buddhaya. मैं शुक्रगुजार हूँ आपका सुमन साहब कि आपने मुझे मौका दिया आपके बीच में आने का। इस पैंडेमिक के चलते मैं इस वक्त में दुबई में हूँ और आपसे दुबई से रूबरू हो रहा हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने शेखर बोधकर साहब का भी कि उन्होंने मुझे आप सबसे रूबरू होने में एक बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाई कि मुझे किसी तरीके से भी यहाँ रहना है। जितने भी यहाँ पैनलिस्ट हैं, डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट, और जितनी भी आज सारे लोग ये विश्व के कोने कोने से इस प्रोग्राम में हैं, उन सबको मेरा जय भीम एंड नमो बुद्धाय और सबको बहुत बहुत बधाई बाबा साहब के जन्मदिन की।
मैं बहुत ही मुख्तसर सी, बहुत छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, बिकॉज मैं बहुत ईगर हूं डॉक्टर राज रतन साहब को और डॉक्टर रतन लाल जी को सुनने के लिए। दोनों बहुत ही विजनरी और बहुत ही बेहतरीन, मैं अपने इंटेलेक्चुअल्स मानता हूं हमारे समाज में। बहुत ही कम लोग हैं ऐसे वाइब्रेंट और बहुत अच्छे लोग। देखिए, मेरा कहना यह है आज बाबा साहब के जन्मदिन पर कि जिस तरीके से तथागत की जो विचारधारा है और तथागत के जितने भी उपदेश हैं, उस समय यानी कि काल और परिस्थिति और जगह के मुताबिक अपने आप को ढल जाते हैं और वहां के मुताबिक उन चीजों को प्रभावित करते हैं और अपना जो मैसेज है तथागत का उसको फैलाते हैं। उसी तरीके से बाबा साहब की जो दर्शन था, जो बाबा साहब की फिलॉसफी थी, जो बाबा साहब का विश्वास था, जिसको हम आज भी लेकर के चलते हैं, जिसका जिक्र सुधीर राज जी ने भी किया कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये तीनों चीजें जो हैं इनको भी रीइंटरप्रेट करने की जरूरत है। बाबा साहब को भी हमें नए अंदाज से, नए वक्त में, नए तरीके से कॉन्टेक्चुअलाइज करने की जरूरत है। हमें वो स्टीरियोटाइप या आप कहें कि एक रिटोरिक तरीके से हम लोग लेते हैं और बाबा साहब को रीइन्वेंट नहीं करते, बाबा साहब को रीइंटरप्रेट नहीं करते। बाबा साहब का एक मानना था कि बाबा साहब कहते थे कि मुझे सबसे ज्यादा धोखा दिया है वो पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। अब उस चीज को भी समझने की जरूरत है। आज परिप्रेक्ष्य में जो पढ़े लिखे लोग हैं और वो लोग नहीं है उस वक्त में जो बाबा साहब को धोखा दे रहे थे। आज क्लास बदल गई है धोखा देने वालों की। आप देखिए, समाज को सबसे ज्यादा धोखा दिया है, मेरी बात का बुरा ना माने तो, और जो भी इसमें कोई पॉलिटिशियंस हैं या कोई पॉलिसी मेकर्स हैं उस तरीके से, तो मैं माजरत के साथ कहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर इस समाज को छला है और धोखा दिया है तो एक पॉलिटिकल क्लास ने दिया है। क्योंकि पॉलिटिकल क्लास उनका वोट लेकर के पार्लियामेंट तो पहुंच जाती है, विधानसभा में पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद वो एक अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ही सिर्फ रिप्रेजेंट करती है और ना तो उसको बाबा साहब की विचारधारा से कुछ लेना देना होता है और ना ही उसको अपने समाज से कुछ लेना देना होता है। वहीं वो 36 के आंकड़े में लग जाती है और जो पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल फिलॉसफी को जो वो रिप्रेजेंट करती है उसी को ही वो आगे लेकर के पार्लियामेंट में भी चलती है। मैं कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जानता हूं जो अपने आप को पार्लियामेंट से बाहर निकल के अम्बेडकराइट करते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो वहां उनकी जबान नहीं खुलती। जब हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है, हमारे समाज के ऊपर लाठियां पड़ती हैं, आरक्षण पे हमला होता है या कहीं भी समाज की उन्नति और उत्थान की बात होती है तो वो कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ इशारे का इंतजार करते हैं। तो सबसे ज्यादा धोखा दिया है वो आज के जमाने में पॉलिटिकल क्लास ने दिया है। दूसरी तरफ ये ब्यूरोक्रेसी में बहुत ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो रिजर्वेशन का फायदा उठाया जिन लोगों ने, और वो लोग वहां पर जब पहुंच जाते हैं तो मैं मानता हूं कि जब तक जॉब में रहते हैं तब तक तो वो बड़े दबे दबे रहते हैं और जैसे ही जॉब से बाहर निकलते हैं, रिटायर्ड होते हैं, फौरन में पॉलिटिकल क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। अगेन वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स का इंटरेस्ट सर्व करते रहते हैं। लेकिन बाबा साहब को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो मेरा मानना यह है कि आज शिक्षित बनने का जो मतलब है, जो शिक्षा हासिल करने का मतलब है, उसका सीधा सीधा नौकरी से कुछ लेना देना नहीं है। हमें शिक्षित बनने का अपने लोगों के अंदर ये मैसेज या पैगाम फैलाना चाहिए कि शिक्षित बनने का मतलब है कि अच्छी जिंदगी कैसे जीनी है, हमें आने वाली अपनी जनरेशन्स को पढ़ाने के बाद उनको अच्छी जिंदगी कैसे देनी है, हमें बाबा साहब और तथागत के रास्ते पर कैसे चलना है। इसका कुछ नौकरी से लेना देना नहीं है, क्योंकि जो लोग आरक्षण का फायदा उठा करके नौकरियां करते हैं वो बाबा साहब को तो याद कोई करता नहीं। मेजोरिटी ऑफ देम दे बिट्रे हिम इमीडिएटली आफ्टर जॉइनिंग दैट पर्टिकुलर क्लास। तो मेरा मानना यह है कि शिक्षा से सीधा सीधा लेना देना हमारा अच्छे रोजगार से है, हमारा अच्छे बिजनेस से, अच्छी लाइफस्टाइल से है, अच्छी जिंदगी से, एक अच्छे बेहतर इंसान बनने से है। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें बिजनेस एजुकेशन की बहुत सख्त जरूरत है। मैं एमबीए और बीबीए की बात नहीं कर रहा हूं। ये मैं कहता हूं कि पढ़ने लिखने के बाद अगर कोई इंसान बीए करता है, एमए करता है, पीएचडी करता है, कि जरूरी नहीं है वो प्रोफेसर बने या जरूरी नहीं है कि वो लेक्चरर बने या किसी स्कूल में टीचर बने या कहीं नौकरी करे, किसी दायरे में क्लर्क बने। वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है, वो एक बहुत अच्छी स्ट्रीम में भी जा सकता है। मेरा मानना यह है कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को रिजर्वेशन देखिए बहुत कम रह गया है, आपको मालूम है, और नौकरियां बिल्कुल कम हो गई हैं। उनके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। भारत की इकोनॉमी बिल्कुल स्टीप डाउन, बिल्कुल डूब चुकी है, हर किसी को मालूम है।
और इसको उभरने में अभी तकरीबन आने वाला कम से कम 20 साल लगेंगे भारत को उस लेवल पर आने पे जहां से ये डूबी है। और आज हर इंसान के जहन में वो जंग छिड़ी हुई है कि वो बता नहीं रहा है कि वो क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। ऐसी स्थिति में हमारा जो समाज है वो बहुत ही विचित्र स्थिति में है और बहुत ही वनरेबल हो गया है, ना उसका कोई वाली है ना कोई वारिस है। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी स्थिति में उसको किसी ना किसी तरीके से बिजनेस की ओर मुड़ना चाहिए, और बिजनेस के अंदर जब जाएगा तो कुछ पैसे कमाएगा, अपने घर में खुशियां लेके आएगा। मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू योर फैमिली, एंड हैप्पीनेस टू योर फैमिली मैटर्स अ लॉट। क्योंकि जब हमारा जो वनरेबल सेक्शन है उसके पास पैसा ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको हमारे अपने समाज का पोटेंशियल बताना चाहता हूं कि पूरे दलित समाज का वी आर अबाउट 25%, 26% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, और हमारा जो पूरा कम्युनिटी का इकोनॉमिक टर्नओवर है, फाइनेंशियल टर्नओवर है इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली $60 बिलियन का है। तो हमारा जो रिसोर्सेज है $60 बिलियन का, वो किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है और किस तरीके से फ्रैक्चर्ड वे में यहाँ वहां पड़ा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो भाई हैं डॉक्टर राज रतन साहब या रतन लाल जी या दूसरे जो लोग हैं, इन लोगों को पॉलिटिक्स की तरफ से लोगों को ये भी एजुकेट करना चाहिए कि हम लोगों को बिजनेस में कैसे जाएं, और हमारा जो ये टर्नओवर है 60 बिलियन, ये 100 बिलियन कैसे बने, और जितने हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करके किस तरीके से हम संगठित रूप में बाबा साहब को रीइंटरप्रेट करें। तो हमें एक जिहाद छेड़नी है गुर्बत के खिलाफ, हमें एक स्ट्रगल करना है अपनी गरीबी के खिलाफ। जब हम अपनी गरीबी के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे, उसके खिलाफ जिहाद करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे, तो उसके साथ हमें फिर संगठित होना है अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज के साथ। और जब हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज फाइनेंशियल इकट्ठे होंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे लोग इकट्ठा होंगे और हम अच्छे अच्छे स्कूल भी खोल सकते हैं। आज बड़ी खुशी इस बात की है कि पूरे भारत के अंदर इतने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हमारे हैं, हमारे अपने इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, हजारों हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, दे आर ओन्ड बाय दलित डॉक्टर्स। कितने ऐसे बिजनेसेस हैं विच आर ओन्ड बाय दलित बिजनेस हाउसेस, लेकिन सब स्कैटर्ड है। सारे जितने भी जो भी बिजनेस कम्युनिटी की अपनी संस्थाएं बनी है वो सब अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को सर्व कर रही है। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो हमारे कम्युनिटी को ये बेनिफिट दे सके कि हमारी कम्युनिटी में नए बिजनेसमैन कैसे पैदा हो, नए एंटरप्रेन्योर कैसे पैदा हो, नए इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैसे पैदा हो, और हम अपने जो रिसोर्सेज है उनको पूल करके किस तरीके से हम आगे लेकर के जाएं। मेरा आज बाबा साहब के 130वें जन्मदिन पर आप सबको बधाई देते हुए यही एक आग्रह है कि हम सब लोगों को एक नई दिशा, नए आयाम की तरफ सोचने की जरूरत है। और जो बाबा साहब का जो ट्रिपल जेम थियरी है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, इसको नौकरी से हटा करके, आरक्षण से हटा करके इसे बेटर लाइफ की तरफ ले जाने की जरूरत है। और हमने इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट है उसके अंदर उसको रखने की जरूरत है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को इंटरप्रेट करने की जरूरत है, और अपनी समाज के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को ही आगे बढ़ाने के लिए ट्रिपल जेम थियरी को हमें अपनाना चाहिए। बाबा साहब का ये मैसेज था। मैं समझता हूं कि जिस वक्त बाबा साहब ने ये इन्वेंशन किया था इस थियरी का, उस वक्त में हमारी इकोनॉमिक हालत क्या रही होगी और आज हमारी इकोनॉमिक हालत क्या है। आप समझ रहे हैं कि आज $60 बिलियन का टर्नओवर एक कम्युनिटी का हो, यूरोप में कई कंट्री मिलकर के $60 बिलियन का टर्नओवर बनाएंगे। आज हमारी कम्युनिटी का इतना बड़ा टर्न अराउंड इंडिया के अंदर है, लेकिन ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाए, जैसे सुधीर राज जी ने कहा, हमारा बुद्धिज्म भी फ्लॉरिश होगा, हमारी बेटर हेल्थ केयर भी होगी, हमारी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐप है, आप सब लोग सुनने वाले शायद इस चीज को जानते हो, एक है खान एकेडमी। खान एकेडमी का मैं आई एम वन ऑफ द डोनर्स, मैं डोनेशन उसमें देता हूँ काफी अरसे से। ये एक अमेरिकन ऐप है और उस ऐप ने पूरे विश्व में ये धमाल रिकॉर्ड बनाया है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेशनली एम्पावर कैसे किया जाए। वो ऐप के जरिए लोगों को 12th क्लास तक एजुकेट करता है। और अब उसने मुझे खुशी इस बात की कि इंडिया के लिए भी ऐप लॉन्च कर दिया है। वो फ्री ऐप है, बिल्कुल फ्री, और इस ऐप के जरिए जितने भी आपके सोशल नेटवर्क्स हैं उनके जरिए आप इस बात को फैलाएं कि हमारे बच्चे जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनके स्कूल तोड़ दिए गए हैं क्योंकि स्कूल गांव में तो होते नहीं है, तो वो लोग इस ऐप के जरिए फोन पर डाउनलोड करें और कम से कम पढ़ने लिखने का मौका पाएं, अपने कोर्सेज की चीजें पढ़ें, आगे बढ़े। बहुत ही आसान भाषा में, अच्छे तरीके से, लॉजिकल मैनर में हमारे लोगों को शिक्षा देने का वो काम कर सकता है। मैं इसी चीज के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब की जयंती में बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर के पी सिंह जी।